मलाइका मैं खुद देख रही हूँ, तुम हट जाओ। ठीक है सर। वालेकुम सलाम सर। आवाज आ रही है सबको? यस सर। चल बोले। ये सैमसंग के नाम से को किसने ज्वाइन किया हुआ है जी? मैंने इसको लास्ट टाइम भी कहा था कि जी आप अपना रीनेम करें। मैं अभी अब रीनेम करें नहीं, मैं रिमूव कर दूंगा जी। कौन है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम भी हम डिस्कस कर रहे थे, दैट वाज force, then the couple, moment of force and moment of couple, and how we achieve the, by applying a single force, how the moment is generated, and what is the counterbalancing moment. तो लास्ट टाइम जो एग्जांपल लास्ट में हमने डिस्कस किया था, दैट एग्जांपल वाज कि आप एक तरफ से जो है वो वी आर अप्लाइंग द प्रेशर विद द fixed braces, and on the other side we have applied the pressure with the removable appliance to counterbalance the movement. But in the bodily movement, controlled force application of this type is very difficult with the removable appliance. Definitely, for the bodily movement with the removable appliance is very difficult, because with a single force there will be the generation of the moment of force to create a counterbalancing movement within the bracket, because the removable appliance, एक removable appliance से we cannot generate the moment of force and the moment of couple, and this is the reason that why the bodily movement is difficult with the removable appliances. The usual orthodontic solution for the bodily movement is the fixed attachment on the tooth, means the fixed appliances. Now, how the bodily movement occur with the fixed appliances is that a rectangular arc wire fitting into a rectangular bracket slot on the tooth is most widely used, because the entire force system can be produced with a single wire. Now, whenever we apply the pressure on the tooth, now अगर यहाँ पे आप देखिए, this is the bracket on the tooth, and we have engaged a rectangular arc wire within the bracket. दो तरह की वायर्स होती हैं जो उनके शेप होते हैं, that is the round wire and the rectangular wire. अब different wire कुछ और भी होती हैं, that are the bidimensional wires or the D-shaped wire, but the most commonly used होती हैं, that is the round wire and the rectangular wire.
Now whenever we have to retract the anterior teeth, जब हमने anterior teeth की retraction करनी है, उनको posteriorly move करना है, we engage the rectangular wire. Now whenever we will engage the rectangular wire and we apply the force on the tooth, that force on the bracket will, that is away from the center of resistance, and that force will create a moment that is known as the moment of force. Whenever we will engage a rectangular arch wire within the bracket, that rectangular arch wire will create a 2-point contact within the bracket. क्या होगा? That will create a 2-point contact. अब 2-point contact कैसे होगा? अब जैसे ये जब rectangular wire हमने bracket में engage की, तो ये देखिए यहाँ पे जो वायर है ये कांटेक्ट नहीं कर रही, वायर का कांटेक्ट दो जगह पे हो रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये 2-point कांटेक्ट इसमें क्रिएट हो रहा है. मतलब नाउ दैट 2-point कांटेक्ट विल क्रिएट अ कपल, दैट इज नोन एज द मोमेंट ऑफ कपल. ठीक है, कपल में क्या होता है? टू फोर्सेस दैट आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. क्योंकि जब ये 2-point कांटेक्ट फोर्स अप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी प्रेशर अप्लाई होगा और यहाँ पर भी फोर्स होगा. द बोथ फोर्सेस दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन एंड विल बी सेम इन मैग्नीट्यूड. तो फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपका यहाँ पे प्योर कपल क्रिएट होगा और उस कपल को कहेंगे मोमेंट ऑफ कपल. So by engaging a rectangular wire within the bracket, we generate both forces, the basic force to move the tooth and the counterbalancing जो force है या counterbalancing जो movement है to control the rotation of the tooth that will create within that bracket. अब यही जो चीजें मैंने आपको explain की ये यहाँ पे हैं. The wire is twisted as it is put into the bracket slot. अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि वायर ये ट्विस्ट होती है, मतलब जब हम रेक्टेंगुलर वायर इंगेज करेंगे एंड हम उसको उस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो उसमें ट्विस्ट आ जाता है. The 2 points of contact are at the edge of the wire where it contacts the bracket. ठीक है, definitely 2 points contact create हो रहा है at the different edge. The moment arm therefore is quite small and the forces must be large to generate the moment of couple. क्योंकि देखें जो मोमेंट क्रिएट होता है ना, मोमेंट क्रिएट कैसे होगा? बाय द फोर्स मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस जो अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस. अब जो हम बेसिक फोर्स लगा रहे हैं टू मूव द टूथ, दैट फोर्स इज ऑन द ब्रैकेट और सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस कहाँ है? वो यहाँ पे है, दैट इज अवे फ्रॉम द आपका ब्रैकेट यहाँ पे. तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस जो मोमेंट क्रिएट करेगा दैट इज मोमेंट ऑफ फोर्स. जो काउंटर बैलेंसिंग मूवमेंट है या जो कपल क्रिएट हो रहा है वो कहाँ क्रिएट हो रहा है? विद इन द ब्रैकेट. कपल जो क्रिएट हो रहा है दैट इज विद इन द ब्रैकेट. अगर ये आपका फुल ब्रैकेट है तो ये इसका सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पर. सो टू जनरेट ए कपल, ये वायर को हम इतना ट्विस्ट करेंगे कि वो दोनों कॉर्नर्स पे ब्रैकेट के इतना प्रेशर अप्लाई करे ताकि वो काउंटर बैलेंस कर सके टू द मोमेंट ऑफ फोर्स. Okay, using the same tooth dimensions indicated earlier, a 50-gram net lingual force would generate a 750 gram millimeter movement. क्योंकि 15 millimeter away है center of resistance. Okay, to balance it, जो मोमेंट ऑफ फोर्स 750 ग्राम मिलीमीटर हो रहा है उसको काउंटर बैलेंसिंग करने के लिए वी नीड अ मोमेंट ऑफ कपल. कितना? 750 ग्राम मिलीमीटर. नाउ हाउ वी विल क्रिएट द 750 ग्राम मिलीमीटर मोमेंट विद इन द ब्रैकेट. ब्रैकेट के अंदर कैसे क्रिएट होगा? टू बैलेंस इट बाय क्रिएटिंग एन अपोजिट 750 ग्राम मिलीमीटर मोमेंट विद इन ए 0.5 millimeter bracket. The torsional force of 1500 gram is required. अब जो हम काउंटर बैलेंसिंग जो हम कपल जनरेट कर रहे हैं विद इन द ब्रैकेट, क्योंकि ब्रैकेट डेफिनेटली दैट इज स्मॉल इन द डायमीटर. सपोज करें कि जो उसका सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस है, अब यहाँ पे
जो प्रेशर फोर्स होगा एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस है। सपोज करेंगे सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस इज 0.5 मिलीमीटर अवे फ्रॉम दिस एरिया, तो 1500 ग्राम प्रेशर होगा इस पॉइंट पे भी और इस पॉइंट पे भी, मतलब तब जाके आपका जो काउंटर बैलेंसिंग कपल जनरेट होगा वो 750 ग्राम मिलीमीटर होगा। तो आपने फोर्स अप्लाई किया है फॉर द रिट्रैक्शन, दैट फोर्स इज 50 ग्राम, वो 50 ग्राम ही रहेगा। वो फोर्स जो मोमेंट जनरेट कर रहा है वो भी 750 ग्राम रहेगा। बट हमारा मकसद अब ये है कि हमने बॉडीली मूवमेंट करानी है, तो जो ये मोमेंट है इस मोमेंट को हमने क्या करना है, काउंटर करना है। इसको काउंटर कैसे करेंगे, ये जो रेक्टेंगुलर वायर है, ये हम रेक्टेंगुलर वायर जब ब्रैकेट के अंदर इंगेज करेंगे तो ये 2 पॉइंट कॉन्टैक्ट यहाँ बनाएगी। अगर सपोज करें हम ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना चाह रहे हैं, वी नीड ए 50 ग्राम फोर्स, तो हम यूजुअली क्या करते हैं, वायर में थोड़ा सा और ज़्यादा ट्विस्ट दे देते हैं। मतलब वायर में अगर ज़्यादा ट्विस्ट आ जाएगा तो डेफिनेटली प्रेशर जो है वो यहाँ पे जो कपल का फोर्स होगा वो बढ़ जाएगा। तो जितनी भी हमारी रिक्वायर्ड जो आपका मोमेंट ऑफ कपल होगा वो हम जनरेट करेंगे विद इन द ब्रैकेट। MCMF ratio, perhaps the simplest way to determine how a tooth will move is to consider the ratio between the moment created when a force is applied to the crown of a tooth, that is known as the moment of force, मैं पहले ही बता चुका हूँ ये, and the counterbalancing movement generated by a couple within the bracket, that is known as the moment of couple. Now suppose करें कि एक पेशेंट है जिसमें हमने फोर्स अप्लाई किया है, दैट इज द मोमेंट ऑफ फोर्स, बट हम काउंटर बैलेंसिंग मूवमेंट जनरेट नहीं कर रहे, जिसको कहते हैं मोमेंट ऑफ कपल। जैसे हमने यहाँ पे जो किया हुआ है, हमने रेक्टेंगुलर वायर एंगेज किए ना, इसी रेक्टेंगुलर वायर की जगह सपोज करें हम राउंड वायर एंगेज करें। जब हम राउंड वायर एंगेज करेंगे तो क्या होगा, वो 2 पॉइंट कॉन्टैक्ट नहीं बनेंगे। जब 2 पॉइंट कॉन्टैक्ट नहीं बनेगा तो ये कपल विद इन द ब्रैकेट भी, जो जिसको कहते हैं मोमेंट ऑफ कपल, वो नहीं बनेगा। तो क्या होगा इन दिस पेशेंट, जब आप राउंड वायर एंगेज करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ उसमें मोमेंट ऑफ फोर्स होगा। मतलब आप इसको ऐसे देख लें कि सपोज करें एक पेशेंट है जिसमें हमने लोअर आर्च या अपर आर्च में स्पेस क्लोज करना है, हमने उसमें राउंड वायर एंगेज की हुई है और हमने उसमें पावर चेंज दिया। इसमें क्या होगा, टिपिंग मूवमेंट होगी। क्यों, बिकॉज एक तो वायर राउंड है, नंबर 1, नंबर 2 उसमें सिर्फ और सिर्फ मोमेंट ऑफ फोर्स जनरेट हो रही है, देयर इज नो मोमेंट ऑफ कपल। मोमेंट ऑफ कपल जाके क्रिएट होगी बाय द रेक्टेंगुलर वायर। वो रेक्टेंगुलर वायर तो हमने क्रिएट उसमें एंगेज ही नहीं की। जब वो एंगेज हमने नहीं की तो दैट राउंड वायर विल नॉट क्रिएट द मोमेंट ऑफ कपल। तो इस कंडीशन में क्या होगा, व्हेन देयर इज ओनली मोमेंट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट ऑफ कपल इज 0 विथ नो MC, जब मोमेंट ऑफ कपल ना हो तो MC to MF रेशियो विल बी 0, the tooth rotates around the center of resistance and it is known as the pure tipping, जब मोमेंट ऑफ कपल ना हो। अच्छा, अब आ जाए दूसरी कंडीशन में, as the moment to force ratio increases, जो MC है that is greater than 0 but less than 1, जो मतलब आप ये कहें कि मोमेंट ऑफ फोर्स सपोज करें 100 है, पहली कंडीशन में क्या था, मोमेंट ऑफ फोर्स 100 था, मोमेंट ऑफ कपल 0, तो वो प्योर टिपिंग करेगा, ठीक है, जिसे आप कहते हैं अनकंट्रोल्ड टिपिंग, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स है 100 और मोमेंट ऑफ कपल हमने सपोज करें दिया है कितना, 50 ग्राम, उसके इक्वल नहीं है, उससे कम है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, पहली कंडीशन में हो रहा था अनकंट्रोल्ड टिपिंग, यहाँ पे रोटेशन हो रहा था, क्राउन वाज मूविंग इन द वन डायरेक्शन, रूट दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। बट इन द अदर कंडीशन मोमेंट ऑफ कपल हमने दिया है बट दैट इज नॉट इक्वल टू द मोमेंट ऑफ फोर्स। इसमें क्या होगा, जो मोमेंट ऑफ जो आपका सेंटर ऑफ रोटेशन है वो पहले यहाँ पे था, अब यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ जाएगा, तो इसमें होगी कंट्रोल टिपिंग।
जिसको कहते हैं कंट्रोल टिपिंग। यहाँ पे सेंटर ऑफ रोटेशन होगा, ओनली क्राउन आपका इस तरह मूव करेगा। द थर्ड कंडीशन, मोमेंट ऑफ फोर्स भी 100 है और जो काउंटर बैलेंसिंग मोमेंट है जिसको कहते हैं मोमेंट ऑफ कपल, वो भी 100 है। तो MC to MF रेशो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। The center of rotation is displaced to the infinity and the bodily movement of it. दूसरी कंडीशन, जब मोमेंट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट ऑफ कपल दोनों बराबर हो जाए, ठीक है, तो वो दोनों कैंसिल आउट करते हैं ना, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट होती है। उस कंडीशन में क्या होगा? देयर विल बी द बॉडीली मूवमेंट। जो सेंटर ऑफ रोटेशन पहली कंडीशन में यहाँ पे है, दूसरी कंडीशन में जब आपने इसमें मोमेंट ऑफ कपल कोई नहीं है, आपने थोड़ा सा मोमेंट ऑफ कपल बढ़ा दिया तो सेंटर ऑफ रोटेशन यहाँ पे हो गया। व्हेन द मोमेंट ऑफ कपल एंड द मोमेंट ऑफ फोर्स दे आर इक्वल, तो क्या होगा? सेंटर ऑफ रोटेशन टूथ से बाहर चला जाएगा। सेंटर ऑफ रोटेशन इज नॉट विद इन द टूथ, ठीक है, तो बॉडीली मूवमेंट होगी। नाउ द लास्ट कंडीशन, व्हेन द मोमेंट ऑफ कपल इज ग्रेटर देन द मोमेंट ऑफ फोर्स। सपोज जो मोमेंट ऑफ फोर्स है वो है 100 और मोमेंट ऑफ कपल है वो 150 ग्राम है। उस कंडीशन में क्या होगा? आपका सेंटर ऑफ रोटेशन जो है वो इंसाइजल एज पे हो जाएगा एंड देयर विल बी द मूवमेंट ऑफ द रूट। द सेंटर ऑफ रोटेशन इज डिस्प्लेस्ड इंसाइजली एंड द रूट अपेक्स विल मूव मोर देन द क्राउन प्रोड्यूसिंग द रूट टॉप। ठीक है, तो 4 कंडीशन है। MCMF रेशियो इज 0, मींस there is only moment of force, moment of couple नहीं है, that will cause the pure tipping or the uncontrolled tipping. Second condition, moment of force 1 है, या मैंने जैसे एग्जांपल दिया कि 100 है। जो moment of couple है वो 0 से ज्यादा है बट 1 से कम है, मतलब moment of force के बराबर नहीं है, उससे कम है, तो that will create control tipping। तो center of rotation जो यहाँ पे था वो यहाँ से डिस्प्लेस करके अपेक्स पे आ गया मतलब। नाउ द थर्ड कंडीशन, व्हेन द मोमेंट ऑफ कपल एंड द मोमेंट ऑफ फोर्स दे बोथ आर इक्वल, जब वो दोनों बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा? देयर विल बी द बॉडीली मूवमेंट, ठीक है। इसलिए जो थर्ड कंडीशन है, जब मोमेंट ऑफ कपल एंड द मोमेंट ऑफ फोर्स बराबर हो जाएगा, द रेशियो विल बी 1 एंड दैट विल कॉज द बॉडीली मूवमेंट। एंड द थर्ड कंडीशन, व्हेन द मोमेंट ऑफ कपल इज ग्रेटर देन 1, या मोमेंट जैसे एग्जांपल दिया 100 से ज्यादा है और मोमेंट ऑफ फोर्स वो 100 है, या मोमेंट ऑफ कपल से कम है मतलब, तो दैट विल क्रिएट द टॉर्क मूवमेंट, दैट विल क्रिएट द टॉर्क मूवमेंट। ये जो 2 कंडीशंस हैं, एक ये कंडीशन और ये दूसरी कंडीशन, ये दोनों वाइस वर्सा है। इस कंडीशन में क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स ज्यादा है, मोमेंट ऑफ कपल कम है। उसमें क्या हो रहा है? अपेक्स इंसाइजल जो रूट अपेक्स पे आपका है सेंटर ऑफ रोटेशन एंड क्राउन मूव करेगा। इस कंडीशन में क्या है? मोमेंट ऑफ कपल ज्यादा है एंड मोमेंट ऑफ फोर्स जो है वो कम है, तो क्या होगा? सेंटर ऑफ रोटेशन विल बी एट द इंसाइजल एज एंड आपकी रूट मूव करेगी लेबियोलिंगुअल डायरेक्शन में। तो ये 4 कंडीशंस होती हैं MCMF रेशियो में, that determines how we achieve the different types of the tooth movement. MCMF ratio 0 is pure tipping or uncontrolled tipping. MCMF ratio less than 1, ये लिखा हुआ है ना यहाँ, MCMF ratio is less than 1, that will cause the controlled tipping. MCMF ratio is equal to 1, bodily movement or the translation. MCMF ratio is greater than 1, the torque movement will occur. टाइप्स ऑफ द टूथ मूवमेंट, वो 4 बेसिक टाइप्स होती हैं। टिपिंग में मैंने बताया कि एक कंट्रोल टिपिंग होती है, एक अनकंट्रोल टिपिंग होती है, ट्रांसलेशन होती है जिसको बॉडीली मूवमेंट कहते हैं, एंड देन द रूट मूवमेंट जिसको टॉर्क कहते हैं, एंड द फोर्थ इज द रोटेशन होती है। अब ये बीच में कुछ चीजें जो है वो लिखी हुई हैं अकॉर्डिंग टू द टूथ की जो लेंथ है, यहाँ जो सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस कितना होता है, इसको हम स्किप कर देते हैं, थोड़ा सा भी ये डिफिकल्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए। बस इस चीज को, ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखें कि MCMF रेशियो चेंज होने से कैसे आपकी मूवमेंट चेंज होती है।
MCMF रेशियो 0 लेस देन 1 1 ग्रेटर देन 1, ठीक है। और ये चेंज कैसे होगा? मोमेंट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट ऑफ कपल की वजह से। चलो, pure rotation of a tooth requires a couple and no net force acts at the center of resistance, only rotation occurs. Suppose कि अगर टूथ रोटेटेड है और उसमें हमने रोटेशन को ठीक करना है, तो उसमें हम क्या देंगे? सिर्फ और सिर्फ वी विल गिव द मोमेंट ऑफ कपल, उसमें मोमेंट ऑफ फोर्स नहीं होगा, सिर्फ हम मोमेंट ऑफ कपल, क्योंकि कपल हम अप्लाई करेंगे। कपल क्या होंगे? टू फोर्सेस दैट आर सेम इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाएंगे, वो जो सिर्फ आपका कपल होगा, जो मोमेंट होगा, दैट मोमेंट विल रोटेट द टूथ। Okay. Now the root position. Control of root position within orthodontic appliance is especially needed in two circumstances. कौन सी कंडीशन में रूट पोजीशन कंट्रोल रिक्वायर्ड होता है? नंबर 1, व्हेन द रूट ऑफ अ टूथ नीड्स टू बी टॉट फेशियोलिंगुअली, मतलब रूट की मूवमेंट हमने करनी है लेबियोलिंगुअल कंडीशन में, नंबर 1। नंबर 2, व्हेन मेसियोडिस्टल रूट मूवमेंट इज नीडेड for proper paralleling of teeth at the extraction sites. Now suppose the condition is class 2 division 2. Class 2 division 2 condition में क्या होता है? मोलर क्लास 2 होते हैं एंड इंसाइजर्स रेट्रोक्लाइंड होते हैं। इंसाइजर्स क्या होते हैं? रेट्रोक्लाइंड होते हैं, और जो लेटरल्स है वो उसके ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। अब ये जो इंसाइजर्स आपके रेट्रोक्लाइंड हैं, इसमें क्या रिक्वायर्ड होगा? इसमें रिक्वायर्ड ये होगा कि आपके क्राउन लेबियली आए और आपका जो रूट है वो लिंगुअल जाए, मींस रूट मूवमेंट इज रिक्वायर्ड इन दिस। दूसरी कंडीशन मतलब लेबियो लिंगुअल रूट मूवमेंट का मैंने आपको एग्जांपल बता दिया कि क्लास 2 डिवीजन 2 में स्पेशली आपको रूट को लिंगुअली मूव करना पड़ता है। दूसरी कंडीशन मेसियोडिस्टल रूट मूवमेंट। सपोज अगर हम यूजुअली जो एक्सट्रैक्शंस करते हैं, प्रीमोलर एक्सट्रैक्शन, हम कैनाइन को डिस्टली मूव करेंगे, ठीक है। मैंने एक, जब हम फिक्स्ड अप्लायंसेस पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने एक फिक्स्ड ब्रेसेस का बताया था, टिप एज ब्रैकेट्स। टिप एज ब्रैकेट्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है? टिप एंड अपराइट। वो पहले क्या करता है? क्राउन की टिपिंग करता है मेसियोडिस्टली एंड देन रूट को मेसियोडिस्टली मूव करता है। तो रूट की भी मूवमेंट रिक्वायर्ड होती है इन बोथ डायरेक्शन, लेबियोलिंगुअल एंड मेसियोडिस्टल। लेबियोलिंगुअल रूट मूवमेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? इन द फॉर्मर इंस्टेंस द नेसेसरी मूवमेंट इज जनरेटेड विद इन द ब्रैकेट एंड द की डायमेंशंस आर दोज ऑफ द आर्च वायर। लेबियोलिंगुअल रूट मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए जो डायमेंशन, जो थिकनेस ऑफ द वायर होती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मतलब विड्थ ऑफ द ब्रैकेट जो है, कि आपका ब्रैकेट जो है वो वाइड है या नैरो है, उसका सिग्निफिकेंट नहीं होता इन द लेबियोलिंगुअल रूट मूवमेंट। अगर हमने रूट को लेबियोलिंगुअली मूव करना है, उसमें जो चीज इंपॉर्टेंट है दैट इज द थिकनेस ऑफ द वायर, क्योंकि हम जितनी ज्यादा वायर को थिक इंगेज करेंगे उतना मोमेंट ऑफ कपल ज्यादा जनरेट होगा एंड दैट मोमेंट ऑफ कपल वो क्या करेगा? रूट की मूवमेंट को लेबियोलिंगुअली कंट्रोल करेगा। So for the labiolingual root movement, thickness of the wire is important. ब्रैकेट के विड्थ का इंपॉर्टेंस नहीं होता कि ब्रैकेट वाइड है या नैरो है, उसका इफेक्ट नहीं होता। इफेक्ट कितना होता है? थिकनेस ऑफ द वायर। सपोज करें कि अगर हम मैंने लास्ट टाइम जब फिक्स्ड अप्लायंसेस हमने पढ़े थे तो उसमें बताया था कि ब्रैकेट के दो तरह के स्लॉट होते हैं। एक 18 स्लॉट के ब्रैकेट्स होते हैं और एक दो तरह के ब्रैकेट के स्लॉट्स होते हैं। नंबर 1 इज द 18 स्लॉट ब्रैकेट, नंबर 2 इज द 22 स्लॉट ब्रैकेट। अगर सपोज करें कि 18 स्लॉट का ब्रैकेट है और उसमें हम 1825 SS या 1825 नाइटाई की वायर इंगेज करेंगे, तो वो क्या करेगा? वो मैक्सिमम रूट की मूवमेंट कराएगा, क्योंकि जितनी ब्रैकेट की विड्थ है उतनी ही हमने उसमें वायर इंगेज की।
सपोज करें 22 स्लॉट का ब्रैकेट है, उसमें हम 1825 की वायर करेंगे इंगेज, तो क्या होगा, रूट की मूवमेंट लेबियोलिंगुअली कम होगी। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट वाइड है, जो उसकी विड्थ आपका जो है स्लॉट साइज बड़ी है और वायर की जो थिकनेस है वो कम है। अगर सपोज करें 22 स्लॉट के ब्रैकेट में हम 21.5 की वायर इंगेज करेंगे, तो अगेन उसमें भी रूट मूवमेंट ज़्यादा होगी। तो फॉर द लेबियोलिंगुअल रूट मूवमेंट the thickness of the wire is important. Okay. For the mesiodistal root movement, the movement is generated across the bracket and the bracket width determines the length of the movement arm. अब ये भी मैं इसमें बताता हूँ कि mesiodistal root movement पे, for the mesiodistal root movement the width of the bracket is important, thickness of the wire important नहीं है। अगर सपोज करें 18 स्लॉट का ब्रैकेट है और 22 स्लॉट का ब्रैकेट है, दोनों की विड्थ दोनों की विड्थ बराबर है, ठीक है, और दोनों में हमने एक ही वायर एंगेज की हुई है, तो जो मीजियो डिस्टल मूवमेंट होगी रूट की वो दोनों में सेम होगी, क्योंकि दोनों की विड्थ बराबर है। अगर सपोज करें मैं 18 स्लॉट ब्रैकेट की विड्थ जो है वो नैरो कर दूं और 22 स्लॉट ब्रैकेट की विड्थ में वाइड कर दूं और वायर में एक ही इंगेज करूं, सपोज करें कोई भी 20 एसएस की या 20 नाइटा की वायर इंगेज कर रहा हूं, तो जो नैरो ब्रैकेट है उसमें रूट की मूवमेंट ज़्यादा होगी। फॉर द मेसियोडिस्टल रूट मूवमेंट द विड्थ ऑफ द ब्रैकेट इज इम्पोर्टेंट and for the labial-lingual root movement the thickness of the wire is important. The width of the bracket on a tooth determines the length of the movement arm for control of the mesiodistal root position, also influences the contact angle at which the corner of the bracket meets the arch wire. अच्छा, वो जो टिप एज हमने ब्रैकेट पढ़े थे, उस टिप एज ब्रैकेट में उसने क्या किया था, जो ब्रैकेट के कॉर्नर्स थे वहां उस पे कट था, मतलब वो कट क्यों था, ताकि ये जो कांटेक्ट एंगल है ये कांटेक्ट एंगल ज़्यादा वाइड क्रिएट हो। जितना कांटेक्ट एंगल वाइड होगा उतनी आपका मेसियोडिस्टल मूवमेंट ज़्यादा होगी, क्योंकि ये देखें ना, ये ब्रैकेट छोटा है, इसमें कांटेक्ट एंगल बड़ा है, जितना कांटेक्ट एंगल ज़्यादा होगा उतना मेसियोडिस्टल मूवमेंट ज़्यादा होगी, जितना कांटेक्ट एंगल कम होगा उतना मेसियोडिस्टल मूवमेंट जो है वो कम होगी। Advantage: the wider the bracket, the easier it will be to generate the moments. Smaller the contact angle is thus advantageous for space closure by the sliding. Disadvantage: wide brackets on a tooth reduces the inter-bracket span of the wire segments, greatly decreases both the springiness of the arch wire and its range of action. The maximum practical width of a wide bracket is about half the width of a tooth. क्योंकि अब देखें ना, जो अपर इंसाइजर्स होते हैं, अपर इंसाइजर्स में या अपर आर्च में क्राउडिंग जल्दी रिलीव हो जाती है एज कम्पेयर टू द लोअर। आप में से जिसने भी ब्रैकेट लगाए होंगे उसको ये पता होगा कि अपर टीथ जो है वो जल्दी अलाइन हो जाते हैं एज कम्पेयर टू द लोअर टीथ। रीज़न क्या होता है, मतलब उसका रीज़न ये होता है कि अपर इंसाइजर्स और लेटरल और कैनाइन वो साइज में बड़े होते हैं, तो जो इंटर ब्रैकेट स्पेन होता है वो इंटर ब्रैकेट स्पेन ज़्यादा होता है, उसकी वजह से वायर में स्प्रिंगनेस ज़्यादा होती है। लोअर जो 4 इंसाइजर्स होते हैं दे आर स्मॉलर इन डायमीटर, जो इंटर ब्रैकेट स्पेन होता है वो इंटर ब्रैकेट स्पेन जो है वो बहुत कम होता है। उसकी वजह से अगर आप बिल्कुल लाइट वायर भी इंगेज करें ना तो उसमें भी स्टिफनेस आ जाती है। वो स्टिफनेस इसलिए क्योंकि डिस्टेंस कम है ना, डिस्टेंस कम होने की वजह से स्टिफनेस बढ़ जाती है वायर की। स्टिफनेस बढ़ने की वजह से जो उसका रेंज ऑफ एक्शन है वो कम हो जाता है, उसकी वजह से मूवमेंट जो लोअर में है वो काफ़ी स्लो होती है। उसका जो क्लिनिकल ट्रिप एक ये है कि वेन एवर देयर इज एनी क्राउडिंग इन द लोअर आर्च, तो कोशिश करके लोअर आर्च में लाइट वायर जो है ना, सपोज 12 नाइटा या 14 नाइटा की वायर,
उसको प्रोलॉन्ग रखें। मतलब अगर अपर में हमने 12 नाइटा एंगेज की और नेक्स्ट टाइम हम 16 नाइटा पे चले जाते हैं, तब भी उसमें अलाइनमेंट हो जाती है। लोअर में कोशिश करें कि 12 नाइटा या ओवन 2 नाइटा की जो वायर होती है उसको कंटिन्यूस रखें फॉर 2 to 3 months इफ देयर इज एनी क्राउडिंग, तब जाके रिलीव हो जाएगा, क्योंकि इंटर ब्रैकेट स्पेन कम है ना। अगर आप वायर की थिकनेस बढ़ा देंगे तो क्या होगा, रेंज ऑफ एक्शन और कम हो जाएगी। तो हम स्प्रिंगनेस को अगर बढ़ाना चाहते हैं या रेंज ऑफ एक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, हम इंटर ब्रैकेट स्पेन को तो कम नहीं कर सकते। जो हमारे हाथ में चीज है दैट इज द थिकनेस ऑफ द वायर, कि हम वायर की थिकनेस को कम से कम कर दें। और जो सबसे कम वायर की थिकनेस होती है ओवन 2 नाइटा, हम उसको एंगेज करना है। So the advantage of the width of the bracket is that कि जो वाइडर ब्रैकेट्स होते हैं वो वाइडर ब्रैकेट में सपोज करें कि अगर हम जो है वो रिट्रैक्शन करना चाह रहे हैं, क्योंकि लेबियोलिंगुअल मूवमेंट के लिए तो थिकनेस ऑफ द वायर हो गई, बट मीजियोडिस्टल रूट मूवमेंट के लिए डिपेंड करता है कि आप की जो टूथ की पोजीशन है वो क्या है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट हम जो है वो उसकी रिट्रैक्शन रिक्वायर्ड होती है। मतलब इसमें बेटा कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लें आप। बेटा किसी ने कुछ पूछना है? अच्छा, जो देखिए आज हमने चीजें डिस्कस की ना, उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी वो था MCMF रेशो। ठीक है, MCMF रेशो MCQs आपके शॉर्ट से भी आता है, MCQs भी होता है और वाइवा में भी पूछा जाता है। आपने MCMF रेशो में जो चीजें याद रखनी है उसमें जो है कि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है, और मोमेंट ऑफ फोर्स और कपल को चेंज करेंगे तो कैसे टूथ मूवमेंट होती है, एंड देन वाइड ब्रैकेट और नैरो ब्रैकेट का जो इफेक्ट है। ठीक है, लेबियोलिंगुअल रूट मूवमेंट के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है, विड्थ ऑफ द ब्रैकेट या थिकनेस ऑफ द वायर, एंड देन मीजियोडिस्टल रूट मूवमेंट के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है, थिकनेस ऑफ द वायर या द विड्थ ऑफ द ब्रैकेट। इसमें कुछ पूछना बेटा आपने? और सर आपने जो लोअर इंसाइजर का बताया कि जिस उसमें क्राउडिंग होगी तो उसकी वजह से मतलब लेस डिस्टेंस लेस रेंज ऑफ एक्शन, सर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। सर आपने कहा कि नीचे देखिए वाले ना, में अगर लोअर इंसाइजर्स जो होते हैं ना, ठीक है, क्योंकि लोअर इंसाइजर की विड्थ ऑलरेडी कम होती है, ठीक है, स्मॉलर इन डायमीटर है वो, तो जो इंटर ब्रैकेट बिल्कुल स्पेन होता है ना, वो इंटर ब्रैकेट स्पेन काफी कम होता है ना। जी सर। ठीक है, जब इंटर ब्रैकेट स्पेन कम होगा तो क्या होगा कि हम जो भी वायर इंगेज करेंगे ना, तो उस वायर में उसकी जो स्प्रिंगनेस है वो कम हो जाती है। ठीक है, अब सपोज करें कि ये वायर है, ठीक है, अब अपर इंसाइजर्स जो हैं वो उसमें एक ब्रैकेट यहाँ है, दूसरा ब्रैकेट यहाँ है। जी ठीक सर। है, तो इस वायर की स्प्रिंगनेस में सपोज करें 12 नाइटा की वायर है, अपर एक इंसाइजर यहाँ है और एक इंसाइजर यहाँ है, इसकी स्प्रिंगनेस डिफरेंट होगी एज कम्पेयर टू द लोअर, क्योंकि लोअर में ब्रैकेट ऐसे लगे हुए हैं दोनों साथ। ठीक है, तो जितना बिल्कुल आप वायर को करीब से पकड़ेंगे, ठीक है, चाहे वो कितनी भी फ्लेक्सिबल वायर हो, उसमें स्प्रिंगनेस कम हो जाएगी। बिल्कुल सर। ठीक है, अब स्प्रिंगनेस कम होगी तो उसका रेंज ऑफ एक्शन भी कम हो जाएगा, इसीलिए टूथ की मूवमेंट लोअर में काफी स्लो होती है। तो उससे बेहतर ये है कि लोअर में व्हेनेवर देयर इज एनी क्राउडिंग इन द लोअर, उसमें 12 नाइटा को कंटिन्यूसली रखें फॉर 2-3 मंथ्स, ताकि जो उसका, क्योंकि देखिए ना, रेंज ऑफ एक्शन को हमने बढ़ाना है तो स्प्रिंगनेस बढ़ानी होगी। अब स्प्रिंगनेस बढ़ाने के लिए दो चीजें होती हैं, या तो हम इंटर ब्रैकेट स्पेन बढ़ा दें या वायर की थिकनेस कम रखें। अब इंटर ब्रैकेट स्पेन तो हम नहीं बढ़ा सकते ना, क्योंकि वो तो जिस पोजीशन में टीथ लगे हुए उसी पोजीशन में रहेंगे, हम वायर जी की सर। थिकनेस कम कर देते हैं। ओके सर। जी बेटा, किसी ने पूछना है और? सर जी
सर ये ब्रेक तो हम अकॉर्डिंग टू जो मेजोरियल डायमेंशन होती है ना सर, उसके मुताबिक हम लेते हैं। मतलब जो है ना मैक्सिलरी जो है ना हमारी मेजोरियल बड़े है सर, तो उसकी मतलब हाफ ऑफ दी जो लेंथ है ना, विड्थ है ना सर, उसकी लेते हैं सर। तो मतलब मैक्सिलरी और मैंडिबुलर नहीं बेटा, उसमें वो जो आपने कहा ना कि आइडियली एक नॉर्मल विड्थ कितनी होनी चाहिए, उसमें लिखा हुआ है मैक्सिमम जो है ना, मैक्सिमम जो ब्रैकेट होना चाहिए वो हाफ द विड्थ ऑफ द, ठीक है। बट सपोज करें जो अपर सेंट्रल इंसाइजर होता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली उसकी विड्थ होती है 8.5 to 9 मिलीमीटर। जी सर। जो उसका ब्रैकेट होता है ना वो 2 मिलीमीटर का होता है सर, बहुत कम होता है वो। जी हाँ, देखिए अगर हम उसको 4 मिलीमीटर रख देंगे ना, मतलब अगर जी सर, मैक्सिमम आप 4 रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आता। यस सर। ठीक है ना, तो वो विड्थ उसकी 2 मिलीमीटर होती है, लोअर की 1 मिलीमीटर होगी अंदर। तो अपर में जाहिर बात है वो डिस्टेंस ज्यादा होता है तो मूवमेंट जल्दी हो जाती है। इवेंट जो पड़ती है हैदराबाद, मतलब उसमें लॉ कॉलेज में होती है लड़की जो है ना, मेरा दोस्त और उसके पूछना साथ। है? आज सर्जरी का लेक्चर नहीं होगा तो हम दूसरा लेक्चर कर लें या थक गए आप लोग? क्या सर? आज सर्जरी सर इतना काफी है सर। काफी है? बस कर दे। तो इसी में बस जी सर, काफी है। चलें, बस इसको फिर आप समझ लीजिएगा, नेक्स्ट टाइम फिर जो है वो कोई दूसरी चीज। यस सर, थैंक यू सर। चलें, थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू।